Healthy morning, all of you. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So, class 6, we are just continue the chapter number 4 of history. What is the name of this chapter? Yes, the first cities. Beta, in this chapter, we already read about Indus Valley civilization, period and extent, city architecture, life of the people. Now we are just talking about trade and commerce and script also. So beta, in our last class we have already read about the cloth making. Have you already read it? This archaeologists have found the evidence of people which type of they are wearing the clothes. Yes, the cotton cloth they are wearing. And the one more thing, it has a special type of spindling also. Spindle means धागों की कढ़ाई देखी गई है. Okay, because of the small pieces of cloth of on that art as a locate that or indicate that the people they are living on that time, basically from the Mohenjo-daro, they also wearing type of the embroidered flowers cloth. So now beta, in our next part we are just reading that are toys. So have you seen in this picture? आपको ये पिक्चर दिख रही है बच्चे? This is the toy. So the excavation means जब digging up the ground, यानी कि जब खुदाई की जाती है. Excavation means क्या होता है? Digging the ground. Repeat after me. Excavation means digging the ground. They have brought various earthen toys. Earthen toys means मिट्टी के toys मिले हैं. Okay? So which type of they are found that earthen toys, यानी कि जितने भी toys मिले हैं, बच्चे खेलते होंगे इस toys से. So किससे मिले हैं वो? earthen toys, यानी कि मिट्टी के toys मिले हैं. They made up of terracotta. और इन toys को क्या कहा गया है? terracotta. क्या कहा गया है? terracotta. These includes various type of dolls, plugs and cart, यानी छोटे छोटे डॉल्स मिली हैं, प्लग्स मिले हैं यानी कि खुदाई के लिए जो कुल्हाड़ी चाहिए होती है, कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जैसी कार्ट्स मिली हैं. ओके, दैट इंडिकेट्स दैट द चिल्ड्रंस एंड द पीपल दे आर लिविंग ऑन दैट टाइम, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद दीज टॉयज़, यानी कि वो छोटे छोटे टॉयज़ से बच्चे खेलते होंगे. नाउ द रिलीजियस बिलीफ के what type of god they are what kind of god they are praying this time. So the figure of the mother goddesses, have you seen this picture? बेटे, this is the picture of mother goddesses, यानी कि जिसे हम आज देवी कहते हैं. This is also made up of earthen. ओके, यानी कि ये भी मिट्टी से बनी हुई मिली है. This signia that seals has indicate the people prayed to the bull, यानी कि उस टाइम पे किस चीज़ की पूजा होती थी? The bull की. The people tree, आप भी आज भी देखते हैं people tree की कहीं ना कहीं पूजा होती है. And पशुपति is a god name. This is the another name of Lord Shiva. This is the another name of Lord Shiva, यानी कि Lord Shiva का दूसरा नाम क्या है? पशुपति. Okay, there is a evidence that there were some fire altars, यानी कि उस समय पर बेटा बेसिकली वर्शिप होती थी, पूजा होती थी किसकी? फायर की, यानी कि अग्नि की, आग देवता की, पीपल देवता की. पीपल इज़ अ ट्री. ओके, पशुपति यानी लॉर्ड शिव. सो विच वर प्रोबेबली यूज द प्लेसेस ऑफ सेक्रीफाइसेस, यानी कि उस समय पर बलिदान दिया जाता होगा. हैव यू नो दैट ना? पीपल यूज टू सेक्रीफाइस देयर एनिमल्स और अनदर थिंग्स. सो सेक्रीफाइसेस किए जाते थे. ओके, सो हैव यू ऑलरेडी सीन दिस मदर गॉडेसेस फिगर इन अ पिक्चर ऑल्सो. सो बेसिकली बेटा दैट टाइम these type of seals have indicate that कि people used to worship of people tree, Lord Shiva or a Pashupati or a fire. Got it? The bull also.
नाउ व्हाट इज अ सील? सील क्या होता है? बेसिकली बेटा, हैव यू सीन दिस पिक्चर? दिस इज द काइंड ऑफ स्टैम्प. इन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ जनरल लैंग्वेज, हम इसे क्या कह सकते हैं? जैसे स्टैम्प होती है, दिस इज दैट ऑल्सो द कॉल्ड द seal. Basically beta, seal is a solid piece of metal or a stone used to mark an impression or on clay or other material as the stamp for identification. Basically ये seal किसी की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है, स्टोन की भी हो सकती है. इससे इम्प्रेशन दिया जाता है क्ले पर या किसी अदर चीज़ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए, जस्ट लाइक अ स्टैम्प. और जैसे व्हेन यू आर यूजिंग द टैटूज यूज़ करते हैं, सो दिस इज़ द बेसिकली द टाइप ऑफ स्टैम्प. ओके, सो वेराइटी ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड इन दीज साइट्स. बेटा, these type of seals are sometime in a square in shape and sometime is in rectangular in shape. किन किन शेप्स की होती थी? sometime are square in shape and sometime is rectangular in shape. Basically they have patriotical motifs and inscriptions on them. यानी कि जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी जगह होती थी, वहाँ पर जो पिलर्स होते थे उनके ऊपर सील्स का काम होता था. द मोस्ट ऑफ सील्स है आइदर अ बुल, यानी कि मैंने ऑलरेडी बताया बुल की, पीपल ट्री और अ गॉड विच वाइडली बिलीव टू द पशुपति. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस ना बेटा, पशुपति की पूजा होती थी. सो बेसिकली सील किस किस चीज़ों की थी? किसी भी गॉड की, पीपल ट्री की, बुल की. दे कन्वे दैट दीज थ्री वुड हैव बीन वर्शिप द पीपल ऑफ दोज टाइम. यानी कि इन तीन चीज़ों की बेसिकली वर्शिप होती थी. वर्शिप मीन्स पूजा होती थी एट दैट टाइम. ओके, these seals shows the pictograph script and this is the seal showing the Pashupati. Pashupati means Lord Shiva. This is the face of Lord Shiva and this is the body. Okay, so the evidence of variety, see this, the evidence of variety of work undertaken during this time, this quality have led historians conclude that they were division of labor based on their specialization of skills. बेटा, जैसा जैसा काम होता था वैसे वैसे उन्हीं लेबर्स को क्लासिफाइड कर दिया गया था. द सम आर डूइंग फॉर द मेटल वर्क. कुछ लेबर्स क्या काम करती थी? सिर्फ मेटल का काम करती थी. सम लेबर्स आर डूइंग द अर्थन वर्क, यानी कि मिट्टी से रिलेटेड ही काम करती थी. सो नाउ द लेबर्स हैज़ क्लासिफाइड विद देयर स्पेशलाइजेशन. आप भी देखते हो कि इफ़ यू वांट टू टेक अ मग, आपको मग लेने जाना है तो आप किसी और शॉप पे जाएंगे. इफ़ यू वांट टू टेक पेंसिल तो आप किसी और शॉप पे जाएंगे. सो देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ शॉप्स एंड डिवीजन ऑफ वर्क ऑल्सो. अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशंस उनको अलग अलग किया गया था. नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स. सो व्हाट यू थिंक दैट टाइम, क्या वहाँ पर ट्रेड यानी व्यापार होता था? टेल मी दैट व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ ट्रेड. ट्रेड होता क्या है? बेसिकली बेटा, व्हेन यू आर टेकिंग, कुछ भी घर में आप लाते हो, सो कहीं से तो लेकर आते हो. यू आर टेकिंग द थिंग, आप उनसे चीज़ परचेज करते हो और क्या देते हो उसके बदले? उसको मनी देते हो. ओके, एंड दैट पर्सन जिसको आप शॉपकीपर को मनी देते हो वो भी तो कहीं से सामान लाता होगा. सो बेसिकली इन दैट टाइम पीपल आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. It may started the barter. First of all beta, the word is barter system. What is the barter system? The beta, in that time there is no use for money. उस टाइम पे मनी स्टार्टिंग में नहीं थी. So how people there taking the things, वो कैसे लेते थे? So barter system होता है बेसिकली बेटा, exchanges the good. Good exchanges the good. Like आई एम ग्रोइंग अ वीट, यानी कि मैं क्या करती हूँ? मैं गेहूँ ग्रो करती हूँ. एंड यू आर जस्ट मेकिंग द अर्थन पोट्स, और आप क्या बनाते हैं? आप अर्थन पोट बनाते हैं. सो मैं क्या करूँगी? मेरा प्रोडक्ट यानी कि मेरे वीट को कुछ आपको दे दूँगी और आप उसके बदले मुझे क्या देंगे? अर्थन पॉट्स देंगे. सो दिस इज़ द बार्टर सिस्टम, यानी कि एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स. सो पहले जो ट्रेड होता था वो ऐसे ही होता था, बार्टर सिस्टम. सम कॉमन सील्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट साइट्स.
सम टाइम बेटा इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बेटा कुछ सील्स का भी सिस्टम होने लगा, यानी कि हमें सामान दो और जो ये सील्स थी, कौन सी सील्स, पशुपति की, बुल्स की, गॉडेस की, ये सील्स जो हमें बहुत सारी मेसोपोटामिया से मिली. ओके, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था. सो बेसिकली बेटा इन दैट सिविलाइजेशन हमें वहाँ से बहुत सारी सील्स मिली हैं. दैट वुड बी इंडिकेट दैट कि हमारा उनसे भी ट्रेड होता था. दिस शो दैट गुड्स वर एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट लोकेशन. वेटिंग स्केल्स मतलब आप जब सब्जी लेने जाते हो तो देखते हो वेटिंग स्केल लगता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो. सो दिस इज़ द वेटिंग स्केल्स. वेट मेजरिंग फाउंड एंड टाइम ऑल्सो सबस्टैंडर्ड इन द ट्रेड. सो बेसिकली बेटा दैट टाइम इज़ अ बार्टर सिस्टम होता था. आप हमारा सामान लो, हम आपका सामान लेंगे. गॉट इट. इन अ लोथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. बेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लोथल कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में. द अ ह्यूज साइट हैज़ एग्जीक्यूटेड विद द अपेयर टू हैव बीन डॉकयार्ड. टेल मी द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉकयार्ड. बेटा डॉकयार्ड इज़ अ प्लेस वेयर बोट एंड शिप्स कुड कम टू शोर एंड लोड अनलोड गुड्स. यानी कि डॉकयार्ड क्या है, डॉकयार्ड वो जगह है जहाँ पर शिप्स को, यानी वाटर वाले शिप्स को लोड एंड अनलोड किया जाता है. सो बेसिकली ये एक तरीका क्या था, ये था शिपयार्ड. ओके, वेयर द वेसल सील्ड फ्रॉम अक्रॉस सी टू डॉक ट्रेड टुक प्लेस. यानी कि बड़े बड़े पानी के जहाज लोथल आते थे, सामान ट्रेड करते थे और अपनी जगह पर सामान, अपने कंट्री में सामान ले जाते थे. ऑल दिस फाइंडिंग कन्फर्म दैट अजम्पशन दैट पीपल इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग दोज टाइम. सो इतनी सारी चीज़ों को देखकर हम अजम्पशन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि बहुत सारी कंट्री से हमारा उस समय पर ट्रेड चल रहा था, स्पेशली मेसोपोटामिया. ओके, नाउ द स्क्रिप्ट. बेटा राइट नाउ इन हिंदी यू विच काइंड ऑफ स्क्रिप्ट यू आर राइटिंग, कौन सी लिपि लिखते हो आप, टेल मी. येस, हिंदी इज़ रिटन इन द देवनागरी और इंग्लिश इज़ रिटन इन अ रोमन. सो बेटा द पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, पिक्चर लाइक स्क्रिप्ट. यानी कि पिक्चर से मैंने बताया पहले कैसी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, जस्ट लाइक अ पिक्चर. सो पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ फाउंड ऑन द सील्स. बेटा जो छोटे छोटे स्टैम्प होते थे, सील्स होते थे, वी कैन सी देयर द पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट. ओके, इट इज़ कंसिडर्ड टू वन वर्ल्ड अर्लीस्ट नॉन स्क्रिप्ट. यानी कि सबसे पुरानी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कही जाती है. इट इज़ कॉमनली अजम्ड दैट स्क्रिप्ट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. यानी कि जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ़्ट. बट इट टिल नाउ इट हैज़ नॉट बी पॉसिबल टू डिफर इट. यानी कि अभी बेटा बहुत मुश्किल है उसे पहचानना, बिकॉज ऑफ 400 से ज़्यादा ऐसी पिक्चर्स हैं जिसे हम लोग आइडेंटिफाई अभी नहीं कर पाए हैं. मे बी फ्यूचर में हम उसे कर सकें, बट अभी तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं. सो बेटा दिस इज़ चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो द एक्सरसाइज वर्क. दिस यू कैन डू इन योर नोटबुक. आपको आपकी नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है. एंड नो नीड टू राइट 4 ऑप्शंस. आपको चारों ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओनली वन राइट यू कैन वन आंसर या वन करेक्ट आंसर you can write in your notebook. And this B part and C part you can also do. A part, B part and C part. These the things you can write on your notebook. And beta, it is very important, complete your work on time. Time पर अपना काम complete करें. Got it beta? Thank you so much students for watching this video.